Hi guys, welcome to this new session. I hope everyone must be fine. And today in this session, we cover the progressive India. So now India is going to be progress in many fields. So let's go one by one. Before that, let's do some questions. So the first question in your screen, that is, what is the rank of India in respect of iron ore? Iron ore की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक क्या है? So the correct answer will be fourth. Okay, so coming to the next question, the question says that what percentage of people in India are illiterate? इससे कौन से percentage of people हैं जो illiterate category में आते हैं? So the percentage will be 25.96%. The option number B, 25.96%. Okay. So now the next question, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ड्यू टू, जो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं वो किसके वजह से होता है, उसका मेन रीज़न क्या है? सो एजुकल उसकी चार ऑप्शन है. आई विल रीड ऑल दिस. दैट वन इज स्किल्स ऑफ वर्कर डज नॉट मैच विद रिक्वायर्ड स्किल. मीन्स अगर एक जॉब के लिए कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स है, लिस्ट है एक स्किल्स की एक जॉब के लिए, और आपके पास उतनी स्किल्स नहीं है उस जॉब के लिए, तो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट हुई. या फिर appear to be employed but actually not. And another will be inappropriate educational system and joint family system. What will the answer? The answer will be inappropriate educational system. Education unemployment है, so उसकी मेन रीज़न क्या होगी? एजुकेशनल सिस्टम की फैसिलिटीज़ नहीं होगी. एंड अनदर रीज़न विल बी पीपल की माइंडसेट उतनी डेवलप नहीं है एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर. सो इसकी वजह से हमारा दिखाई देता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट. Progressive features. So India is signing because some of the points. One is that rapid rise in GDP. The GDP means gross domestic product. There is increase in the GDP. Next one is that increase in the productivity capacity, and also there is the development of infrastructure. That means the improving in the educational facilities and healthcare facilities. Then boost in export record foreign exchange reserve, and also there is improvement in the human capital as well as the physical capital. And this type of development shows a structural change. That means it shows a progressive path of India. So moving these points in detailed explanations. So let's go. First one is the rising trend in GDP. There is a increasement in the gross domestic product. So for how is the increasement? Let's see. So up to the fifth 5-year plan, that means up to the 1980, there was no increasement in GDP. The growth of GDP was not increasing. That means there is no increasement in GDP. And also the average annual growth. Talking about the average annual growth of country of GDP was also not much. It is also very slow. That was also about 3.7% during the time of 1951 to 1980. During this period, the growth rate of GDP was not much. It is in a backward standard. And then in the sixth 5-year plan and seventh 5-year plan, so the average annual growth, it is increased. It increased to 5.4%. That means it is increasing during the sixth 5-year plan and seventh 5-year plan. Now next, during the time of 2003 to 4 and 2008 to 9, during this period, the GDP growth per annum it is 8.6%. That means it is increasing in year wise. It is increasing, which is 5.4%. That was increased to 8.6%, and slightly it is decreased during 2015 to 16, but still it is increasing. And this was also higher than Brazil, Russia, China. ये जो सब कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इनसे ज्यादा हमारा जीडीपी का ग्रोथ है. इंडिया हैव मच हायर जीडीपी ग्रोथ than Brazil, Russia and China. So the growth rate of GDP per annum in 1951 to 2016, मतलब तब से अभी तक for present 2016 is 5.5%. So Indian economy during the time of British period, या फिर we can say in the time of independence, it is stagnant, means it is backward, but now it rises in some extent. Okay, it is all about GDP. Next, move forward about two sectors. What is the two major sectors in India? Agricultural sector, another is industrial sector. So in agricultural sector, the average growth rate is 2.7%.
इन 1951, सिंस 1951 मीन्स 1951 से अब तक हमारा जो एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट है वो 2.7% है, एवरेज एनुअल ग्रोथ है, दैट इज ग्रोथ, and significantly higher than 0.3% growth before independence. Before independence क्या था, वो 0.3% में ग्रोथ कर रहा था, अब क्या कर रहा है, अब ईच ईयर में हमारा 2.7% ग्रोथ कर रहा है. ओके, सो दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो. इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इंक्रीज हो रहा है. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिफोर इंडिपेंडेंस बस 2% का इंक्रीज हुआ था, बट नाउ the average annual rise in industrial output is 6% since 1951 से अभी तक, that is increasing about 6%. Now the next point is some success in field of self reliance. सेल्फ रिलियंट होना, आई मीन ऑटोनोमस होना, या फिर खुद के ऊपर डिपेंड, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके खुद की प्रोडक्शन करना. सो इंडिया किसमें सेल्फ रिलियंट है? सो बाय द एंड ऑफ 5th 5-year प्लान इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. उसकी खुद की प्रोडक्शन हो रही थी बहुत ज्यादा, दैट इज टॉकिंग इन 5th 5-year प्लान. In 1919-2000, the food grain production in the country it reached 206 million tons, and then also it increased to 257.07 million tons in 2014 to 15. So there is also increasement in the food grain production in the country. This shows that India is highly produce food grains, and it becomes self-sufficient in food grain production. It does not need to depend on other countries for its food grain. नाउ उसकी मेन जो कॉज थी वो थी दो चीजें, एक ग्लोबलाइजेशन है, एक लिबरलाइजेशन है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स एक ट्रेड है या फिर एक प्रोडक्शन है, वो एक कंट्री में नहीं बहुत सारे कंट्रीज में स्प्रेड होता है. एंड लिबरलाइजेशन जिसमें हम जो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करते हैं. So after the adoption of these liberalization and globalization in 1991 to 92, during this time, for and this due to this liberalization and globalization, what happens, exports ज्यादा होंगी, imports होंगी, exports होगी, इसमें ज्यादा varieties आएगी या facilities इसमें होगी. So now presently India का जो foreign exchange है, India's foreign exchange reserve that tossed to US dollar 361 billion on the May 2016. ओके, सो इससे इसमें शो करता है कि हमारा इंडिया है वो सेल्फ रिलियंट हुआ है, बहुत ज्यादा उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा. सो दैट वाज अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड अबाउट सम मॉडर्नाइजेशन. कुछ मॉडर्नाइजेशन भी हुई हमारे कंट्री में. सो मॉडर्नाइजेशन में हम दो थिंग्स पढ़ेंगे, एक है हमारा स्ट्रक्चरल चेंज हुई, अनदर इज इंस्टीट्यूशनल चेंज. स्ट्रक्चरल चेंज में हम तीन सेक्टर्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. एग्रीकल्चर मीन्स प्राइमरी सेक्टर, तीन सेक्टर से. सो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इन द कंट्रीज जीडीपी हैज डिक्लाइंड. हियर इट इज डिक्लाइंड. सो डिक्लाइन हुआ तो डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, बट ये डेवलप हुआ है. कैसे डेवलप हुआ है? हमारे एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज होती है. सो इसके वजह से हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, दैट मीन्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर है जो अदर सेक्टर से उसकी डाउन हो जाती है. अगर एग्रीकल्चर का थोड़ा सा डिक्लाइनेशन होगा तभी जो पीपल है वो सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर में एंगेज होगी. एंड मॉडर्न इंडिया में ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न थिंग्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्रीकल्चर में डिक्लाइनेशन होने की वजह से हमारा सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर इंप्रूव होगा, इसके साथ हमारा इंडिया का भी इंप्रूवमेंट होगा. So share of agriculture and allied activities in the country's GDP, it is declined from 57.7% that was in 1950 to 51. Then it declined in a such huge quantity that is 17.4% in 2014 and 15. So see the difference between this. There is a high decreasement in the agriculture sector. एंड एग्रीकल्चर की डिक्लाइन के साथ साथ इंक्रीज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर की. यस, सो देयर इज इंक्रीजमेंट इन द सेकेंडरी सेक्टर. सो 1950 टू 51 में जो 14.8% था वो इंक्रीज हो गया 2014 टू 15 में 29.7% हो गया. सर्विस सेक्टर में भी सिमिलरली इंक्रीजमेंट हुई. सो जो 27.5% था वो इंक्रीज होकर 52.9% ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2014 एंड 15. अब कुछ और मॉडर्नाइजेशन की पॉइंट्स में जाते हैं. दैट वन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो थी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री. कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री मीन्स जो फूड बनाती थी या कुछ अदर कॉस्मेटिक्स बनाती थी. कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ
ब्रिटिश पीरियड और इंडिपेंडेंस, दिस टाइम में हमारा जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री की वैल्यू बहुत थी, और जो केमिकल इंडस्ट्री है या फिर प्लांट मशीनरी इंडस्ट्री है उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। अब क्या हुआ, मॉडर्नाइज हो गया, मतलब जो केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो ज़्यादा हो गई, एंड द फूड कंज्यूमिंग इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी थोड़ी डिक्लाइनेशन होगी। ओके, सो इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चर है, जो फूड ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, इसकी जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चर है जो हमारे इंडिया में बहुत चल रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड, वो डिक्लाइन हो गया एंड थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होके बन गया केमिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। एंड उसके साथ उसकी प्रोग्रेस भी हुई इन द मॉडर्न कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हमने बनाई। उस इस मॉडर्न थिंग्स की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी प्रोग्रेस हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोग्रेस हुई, हम मॉडर्न थिंग्स को यूज करने लगे, जो प्राइमरी टूल्स है, प्रिमिटिव टूल्स है लाइक हो डाउ, ये थिंग्स हम यूज नहीं किया, हमने कुछ इंप्रूवमेंट की हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, मॉडर्न थिंग्स यूज की, लाइक द एग्जांपल इज HYV सीड्स, या फिर कोई टेक्नोलॉजी की बात कर लो तो इसमें मॉडर्नाइजेशन हो गई इन द एग्रीकल्चर सेक्टर टू। अब इंस्टीट्यूशनल चेंज भी आते हैं, सॉरी गाइस, इंस्टीट्यूशनल चेंज। Okay, institutional change, which talking about the transport, educational system, these all comes under this institutional change. How change appears in the institutions? So institution में क्या हुई, support to financial institutions जो थी या फिर infrastructure थी, रोड्स की बात कर रहे हो, रेलवेज, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ पावर, देन प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज, इसमें भी हमारी क्या हुई, इम्प्रूवमेंट हुई। इसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लिस्ट है हमारे पास, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE। सो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने किया है हमारे दीज थिंग्स को डेवलप, किसको, रेलवेज की, रोड्स की, या फिर पावर जनरेशन और मार्केटिंग फैसिलिटीज भी इंप्रूव हुई। सो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के लिए हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने सपोर्ट किया इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ओके, अब स्ट्रक्चरल चेंज हो गया एंड इंस्टीट्यूशन चेंज हो गया। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल थी उसमें भी फॉर्मेशन, मतलब उसमें इंक्रीज हुई। कैपिटल मीन्स बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। सो इसमें दो थिंग्स आते हैं, GDS, GDF, CF। GDS मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स, GDF, CF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो 1951 में 10.1% थी। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग जो 10.1% थी वो इंक्रीज होकर 2013 एंड 14 में 30.6% बन गई। अब GDFCF जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन थी, जो कैपिटल फॉर्म हुई थी, वो 8.4% था 1951 में, वो भी इंक्रीज होकर 32.3% बन गया इन द 2013 टू 14। सो इस कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हमारा दो थिंग्स भी डेवलप हुई, फिजिकल कैपिटल डेवलप हुआ, ह्यूमन कैपिटल डेवलप हुआ। ओके, देयर इज आल्सो इंक्रीज इन द फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। सो नेक्स्ट वन इज राइजिंग ट्रेंड इन पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम थी मींस पर हेड इनकम जो थी वो भी इंक्रीज हुई। So in 2006 and 7, per capita income GDP in the country was only $8.806, but then it is increased to $950 in 2007 and 8. So अगले ही साल हमारी increase हो गई थी per capita income. फर्दर इंक्रीज हुई थी 2010-11 में, 14-15 में भी इंक्रीज हुई थी, दैट इंक्रीज टू हायर 1581.5 पॉइंट डॉलर तक हमारा इंक्रीज हो गया था पर कैपिटा इनकम। ओके, सो पर कैपिटा इनकम में भी इंक्रीज हुआ, मतलब डेवलप हो रहे हैं हमारे कंट्री। सो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ कंज्यूमशन, सो ये बहुत ही ज्यादा लिंक है हमारे पर कैपिटा इनकम के साथ। कैसे लिंक है, पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज होगी तो एक फैमिली अच्छा कंज्यूम करेगी। सपोज एक फैमिली के इनकम बहुत ही ज्यादा लो है तो वो बहुत ही अच्छा एजुकेशन हो या फिर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। बट अगर उसकी पर कैपिटा इनकम और इनकम अगर बढ़ जाएगी या फिर इंक्रीज होगी या ज्यादा होगी तो उनकी कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि उनके पास ज्यादा इनकम है तो वो बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज अफोर्ड कर सकते हैं, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी पा सकते हैं। सो इसीलिए जो लो पर कैपिटा इनकम shows the low consumption level
high per capita income shows the quality और high quality consumption level. So the अगर per capita income की rise होगी तो consumption level की people की जो standard of living है वो भी increase होगी. So rise in per capita income has brought about the significant improvement in the quality of consumption of the people in the country. So all this achievement reveals that जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड हो गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स की वजह से. हमारे बहुत से एस्पेक्ट्स में अंडर डेवलप्ड था, लेकिन अब ऐसे बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, दैट लीडिंग और हेडिंग इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट. ओके, अब कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हुई इंडियन इकोनॉमी में. व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज? जो हमारी इंडिपेंडेंस, इसमें हम एक कंपैरिजन देखेंगे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा स्ट्रक्चर था, अब कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा मूविंग फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है, उसकी एक स्ट्रक्चर देखेंगे. ओके, सो इसमें मोस्टली आता है जीडीपी. जीडीपी का मीनिंग क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. So it is the total money value or goods that produce in a country. So it is talking about the money which produce or from the final goods and services. अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारे कंट्री से तो नहीं है कि एक ही कंट्री से होगी. अगर हमारे इंडिया का जीडीपी की बात करें तो हमारे इंडिया में जितने गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी टोटल इनकम क्या है, उसकी तो जीडीपी बनेगी. नहीं तो हम और क्या और कंट्रीज से तो नहीं बना सकते ना. सो इंडिया की होगी. खुद की कंट्री में एक ही ईयर में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं जीडीपी. ओके, एंड इसको क्यों रखा है? इसको हम इसे यूज करते हैं टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ. कैसा इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री में, उसको मेजर करने के लिए हम जीडीपी का यूज करते हैं. ओके, अब स्ट्रक्चरल चेंज का मीनिंग क्या होता है? जो स्ट्रक्चर में चेंज आता है ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी ओवर टाइम. एक सर्टेन ड्यूरिंग टाइम में अगर कुछ रिसर्च होगा तो उस एक स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होगा जो हमारा एक डेवलपमेंट पाथ में जाएगा. सो द चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. सो ये पार्ट हमने समझ लिया कि जो स्ट्रक्चर में चेंज होगा ओवर अ टाइम ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो एक डेवलपमेंट प्रोसेस में होगा उससे हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल चेंज. अब स्ट्रक्चरल मीन एक पॉजिटिव है, मतलब एक डेवलपमेंट में हो रहा है तो एक पॉजिटिव चेंज होगा. ओके, स्ट्रक्चरल चेंज में हम सेक्टर्स की बात करेंगे. 3 तरीके के सेक्टर्स होती हैं, सबको पता है. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. इस तीनों सेक्टर्स को एक डिटेल में पढ़ेंगे. प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर ऐसी सेक्टर होती है जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करती है नेचुरल रिसोर्सेज से. नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज करके कल्टीवेशन करके उससे रॉ मटेरियल्स बनाते हैं. एग्जाम्पल क्या होगा? एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर. एंड ऑल्सो उसके साथ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर्स के अंडर आते हैं. सेकेंडरी सेक्टर पे चलते हैं. सेकेंडरी सेक्टर ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो बना है रॉ मटेरियल्स हो या फिर एनी गुड हो, उसको कन्वर्ट करके हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, एक अदर गुड बनाते हैं. सो ट्रांसफॉर्म्स द रॉ मटेरियल्स to finished product. So the examples are manufacturing, electricity, water supply. So these are the examples of secondary sector that converts one physical good या फिर raw materials to another finished product. Now the next one is service sector, tertiary and service sector. So ये एक सेक्टर है जो बोथ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है. सो जस्ट टेक अ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू में पढ़ते हैं. सपोज कटन है, कटन कल्टीवेशन होगा. सो कटन कल्टीवेशन किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि हम कल्टीवेशन कर रहे हैं. सो उससे मिलेगा हमें रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स आएगी क्या? कटन. कटन की रॉ मटेरियल आएगी तो ये वो रॉ मटेरियल जाएगी इंडस्ट्रीज में, दैट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर में जाएगी. So that cotton goes to the secondary sector for the manufacturing, and after manufacturing it forms a cloth. जो finished product बनेगा वो बनेगा cloth. अब वो cloth इंडस्ट्रीज में बन गई, बहुत क्वांटिटी में क्लॉथ बन गई. अब वो क्लॉथ हमारे पास कैसे आएगी? उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए. एंड वो ट्रांसपोर्ट कहाँ कौन है? वो दिस ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर. सो वो ट्रांसपोर्ट जो हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती है. प्राइमरी सेक्टर को कैसे सपोर्ट करती है? एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज हम कटन कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए मनी. कल्टीवेशन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो वो मनी कहाँ से आएगा? बैंक से. और बैंकिंग तो है टर्शियरी सेक्टर.
सो ये प्राइमरी सेक्टर से जो गुड्स बनती है, जो रॉ मटेरियल्स बनती है, उसे सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो ये सपोर्ट करता है सर्विस सेक्टर. सो द टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर supports the primary and secondary sector. तो examples क्या है? Health, education, banking, trade, transport. All this comes under the tertiary sector. Now, um, okay. So while estimating national income, the Central Statistical Organization (CSO) एक रिसर्च था जिसमें उन्होंने क्या किया, हमारा नेशनल इकोनॉमी जो है उसको डिवाइड कर दिया 6 सेक्टर्स में. अब हमारा कितना सेक्टर्स है? 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. उन्होंने उसे डिवाइड किया 6 सेक्टर्स में. उन्होंने क्या, प्राइमरी सेक्टर तो बना दिया, सेकेंडरी सेक्टर्स हुआ, जो थर्ड है हमारा टर्शियरी सेक्टर है उन्होंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिटी पोस्टल सर्विस, फॉरेन ट्रेड, इन सब में उन्होंने डिवाइड कर दिया. फिर हमें पता चला कि ये सब तो हमारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती है. तो इन्होंने हमने क्या किया कि इन चारों को हमने मिलाकर एक सेक्टर बना दिया. दिस ऑल 4 कम्स अंडर वन सेक्टर, दैट इज टर्शियरी. अब तो अब कितने सेक्टर से? अब 3 सेक्टर से. अब जो सेक्टर्स है, बहुत सारे सेक्टर्स है, उनकी काम क्या है? वो कंट्रीब्यूशन करती है जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन करती है. उस कंट्रीब्यूशन की लिस्ट पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सेक्टर. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर. अब प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइनेशन हुआ था, हमने देखा है ये. सो प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइनेशन हुआ, उसकी जो टेबल है, उसकी जो चार्ट है वो हमारे पास है. दैट वाज इन द बुक, आई प्रेजेंट इन द स्क्रीन. सो जो 1950 टू 51 में 57.17% थी उसकी परसेंटेज, अब वो डाउन होकर कितनी हुई? 17.14% बन गई. मीन्स उसमें क्या हुआ? डिक्लाइनेशन हुई. अब प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल बताओ. एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखो डिक्लाइनेशन होगी. 1950 टू 51 में जो 50.20% था वो डिक्लाइन होकर 15% बन गया. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डिक्लाइनेशन आ गई. दिस shows that the Indian economy is marching towards the development. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइनेशन हुआ तो बाकी सारे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, तो वो ही तो चाहिए इंडिया के डेवलपमेंट के लिए. सो दिस shows the development in the of India. So India's economy is developing. नाउ सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं. सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या हुआ? राइज इन द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. सो सेकेंडरी सेक्टर की जो परसेंटेज देखते हैं, 1950 टू 51 में 14.88% थी. 1950 टू 51 में. अब 2014-15 में इंक्रीज होगा ना, 14 थी तो अब 23 बन गई, 26 बन गई, अब राइज होकर 29.7% बन गई. सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या हुआ? इंक्रीज. सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल बताओ. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इंक्रीज होनी चाहिए. यस. 1950 टू 51 में 14.8% थी, जो इंक्रीज हो गई 2014-15 में, जो बन गई 29.7%. So, according to the World Development Report 1995, the contribution of industrial sector towards the national income was 33%. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हुआ था, उसमें हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी जो टोटल इनकम है टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कंट्री, वो 33% है. ये हमने देखा कि जो सेकेंडरी सेक्टर थी उसकी ज़्यादा हमारी कंट्रीब्यूशन बन गई, सेकेंडरी सेक्टर की बहुत ज़्यादा राइज होगी. अब थर्ड सेक्टर क्या है? टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर में भी इंक्रीज हुई. 1950 टू 51 में जो 27.5% था वो इंक्रीज होकर 52.9% बन गए. ओके, उसमें भी इंक्रीजमेंट हुई. अब टर्शियरी सेक्टर का एग्जांपल बताओ. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सेक्टर. 1950 टू 51 में 11% थी, 2014-15 में उसमें इंक्रीजमेंट हो गई. ओके, so here it is 19%, that is strong, it is increasing. Okay, presently share of service sector in GDP 52.9% है. More than 2 community producing sector agriculture industry. बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? जो सर्विस सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों को मिलाकर भी उससे ज्यादा है. मतलब सर्विस सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है. सो द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीडीपी, उसकी परसेंटेज देखिए. सर्विस सेक्टर की परसेंटेज है हमारी 52.9%, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों को मिलाकर उनकी परसेंटेज है 47.1%. मतलब
सर्विस सेक्टर की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से भी ज़्यादा प्रोडक्शन है या फिर ज़्यादा शेयर है जीडीपी में। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं क्योंकि अभी के टाइम में हमारे जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स में मोस्टली एंगेज होती हैं। बैंकिंग की बात करें, एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, इसमें बहुत ज़्यादा पीपल एंगेज होती हैं, तो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू ऑल।